Indian civilization and culture is dash dash. And my second question is, what was the Gandhiji described in this lesson? Indian civilization. Where are people not happy? Option: cities, town, state, and city. The right answer is city. From where? From where does the crime start? Village, town, state, या city? The right answer is cities. Indian civilization and culture and Indian civilization and culture has been written by. Mahatma Gandhi. The right answer is Mahatma Gandhi. Gandhi's philosophy of ahimsa means option: truth, self-reliance, freedom, and non-violence. Non-violence. The right answer is non-violence. Indian civilization and culture. This essay has been published in 19. The right answer is 1935. Mahatma Gandhi was a dash dash economist, politician, psychologist, and spiritual leader than a politician. The right answer is a spiritual leader than a politician. Mahatma Gandhi is known as dash dash Bapu, the father of our nation, A and B, and none of these. The right answer is C, A, and B. Mahatma Gandhi received the honor the father of nation in which year? Option: 1945, 1946, 1947, and 1944. The right answer is 1944. When did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? The right answer is 1915. Gandhiji believed truth, civilization, developments. Option: power, reasoning, moral beings, and wealth. The right answer is moral being. Gandhi went to Champaran in which year? Which year Gandhi went to Champaran? The right answer is 1917. Mahatma Gandhi used as the chief weapons. The right answer is truth and non-violence. The people of Europe are inspired by dash dash and Roman writers. Option: British, Indian, German, and Greek. The right answer is Greek. I do not even have. Who was composed the poem "Sweetest Love I Do Not Go"? The right answer is John Donne. Sweetest Love I Do Not Go is the dash dash poem. Option: war poem, people, and none of these, and metaphysical. The right answer is metaphysical. Who believed that it is impossible to serve without be beloved? The right answer is John Donne. John Donne surrendered the result in hands of option: his wife, anymore, destiny, and all of these. The right answer is destiny. Finally, the poem gives the message to love. Dash dash. Anyone. Option A: anyone, someone, no one, and everyone. The answer is everyone. When was the poem "Sweetest Love I Do Not Go"? When was the poem "Sweetest Love I Do Not" composed? Option: 1612, 1613, and 1614, and 1611. The right answer is 1611. Sweetest Love I Do Not Go is based on option: true love, destiny, A and B, and none of these. A and B. What is the synonyms of destiny? What is the synonyms of destiny? Answer: option A: hate, love, fortune, and none of these. The answer is fortune. What is antonyms of finally? Option A: lastly, and none of these. Entirety. The answer is entirety. John Donne was the pioneer of a new kind of lyric and dash dash verse. Option A:
मैट्रिकल, वर्बल, मैकेनिकल और एस्टेरिकल। आंसर है एस्टेरिकल। ओ वाओ, ओ हाउ फ्यूल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन है ऑप्शन है ऑटमन द सोल्जर एंड एन एपिथ एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका आंसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। John Donne thinks that dash dash is certain. John Donne thinks that dash dash is certain. Option है life, work, walking and death. Answer है death. John Donne is dash dash poet. Option German, American, Indian and British. इसका आंसर होगा British. Who is well known for this song and sonnets, satirics and English and sermons. Option है W.H. Auden, Walt Whitman and none of these and John Donne. इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा John Donne. John Donne want to go away because he is not tired of his dash dash. Father, ऑप्शन है father, brother, sister and blob. आंसर होगा इसका blob. That's all my question. मोहनजोदड़ो का की खुदाई का नेतृत्व किसने किया? कालीबंगा किस राज्य में है? किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हैं, कहीं से भी। अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक कौन थे? मनुस्मृति किससे संबंधित है? चंडालों से। धर्म और सामाजिक नियम से। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है, किस राज्य में? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाकाव्य। जया। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 268 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? मतलब टाइम टोटल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 BC से 1900 BC। मनुस्मृति किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय। त्रिपिटक। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। समाज के चार वर्ण की ग्रंथ किस ग्रंथ में बताया गया है? महाभारत में। मनुस्मृति। महाभारत में कुल कितने पर्व थे? 18। द्रौपदी का विवाह कितने पांडव से हुआ था? 5 पांडव। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जया। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। अशोक की शिलालेख की लिपि किसने लिखा था? ब्राह्मी लिपि। किस भाषा में लिखा था? प्राकृत भाषा। प्राकृत। मौर्य काल की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मेघास्थनी का किसका दूत था? सेल्यूकस का। मतलब कहाँ का? यूनान का। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया? लोहा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? स्नानागार या अन्नागार? स्नानागार। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान।
मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व कब हुआ था? मतलब 1932। 1922 क्वेश्चन बना है। हो गया मेरा। शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। आंसर ग्रीक भाषा। जियोग्राफी किस भाषा से बना है? किस शब्द से बना है? जियोग्राफी जियोग्राफी। जियोग्राफिया से। जियोग्राफिया। भूगोल का अर्थ क्या है? पृथ्वी। आंसर पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का पिता कौन है? क्रेटस। आंसर हिकेटियस। भूगोल। भूगोल का पिता कौन है? हाँ सर, पिता है हिकेटियस और पहला प्रयोग करने वाला इरेक्टोस्थेनीज है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? आंसर फ्रेडरिक रेडजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। पर्यावरणीय निष्ठवाद के समर्थक कौन थे? एलन सीसेंपल। फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का क्या नाम था? आंसर कुमारी एलन सैंपल। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के मूल भूगोलवेत्ता थे? आंसर है जर्मन। मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ था? 18वीं 18वीं शताब्दी सदी में। हिकेटियस कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? हिकेटियस कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? में। यूनान के मिल्टस शहर के। हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर जस पीरियडियस। विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था? आंसर हिकेटियस ने। भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का पिता किसे जाता है? अलेक्जेंडर वाम। आंसर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? आंसर है जर्मन के। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर कॉस्मोस। पर्यावरणीय निष्ठवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निष्ठवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर फ्रेडरिक रेडजेल। पर्यावरणीय निष्ठवाद का दूसरा नाम क्या था? पर्यावरणीय निष्ठवाद का दूसरा नाम क्या था? आंसर है नीतिवाद विचारधारा। पर्यावरणीय निष्ठवाद के समर्थक कौन भूगोलवेत्ता थे? पर्यावरणीय निष्ठवाद के समर्थक कौन भूगोलवेत्ता थे? एलन सीसेंपल एंड हम्बोल्ट। पर्यावरणीय निष्ठवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ था? पर्यावरणीय निष्ठवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ था? मानव की प्रकृतिकरण से। कौन सा विचारधारा निष्ठवाद को पूर्णतः अस्वीकार करता है? इसका आंसर है संभववादी विचारधारा। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे कहाँ के रहने वाले थे? आंसर है फ्रांस का। लुसियन फेब्रे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कब लिखी थी? जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री लुसियन फेब्रे ने कब लिखी थी? 1915। आंसर है 1925 में। समवाद विचारधारा में किसको महत्वपूर्ण माना गया है? आंसर है मानवीय घटक को। समवाद विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? प्रकृति के मानवीकरण से। रुको और जाओ का सिद्धांत किस विचारधारा को कहते हैं? आंसर है नवनिष्ठवाद को। मानव प्रकृति का दास है, यह किसका कथन है? मानव प्रकृति का दास है, यह कथन किसका है? एलन सीसेंपल का। ना दास बनो ना मालिक बनो, समझदारी से आगे बढ़े, यह किस विचारधारा का कथन है? आंसर है नवनिष्ठवाद। नवनिष्ठवाद विचारधारा के प्रतिपादन कौन थे? आंसर ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? आंसर है अमेरिका के। ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर है जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। कौन सा विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है? कौन सा विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है? इसका आंसर होगा अमूलवादी विचारधारा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? इसका आंसर है 1498। अमेरिका खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492। कहाँ के भूगोलवेत्ता देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं? कहाँ के भूगोलवेत्ता देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं? जर्मन के भूगोलवेत्ता। जर्मन के भूगोलवेत्ता सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय किस रूप में वर्णन किया है? परिसंचरण के धमनियों के रूप में। और दूसरा चैप्टर से है विश्व जनसंख्या से। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी जगह पर रहने वाले सभी लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? देश के निवासी मतलब जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या कब 600 करोड़ से अधिक हो गई थी?
21वीं सदी के प्रारंभ में। विश्व में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार होता है? विश्व में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार होता है? असमान। वर्तमान विश्व का जनसंख्या कितना है? वर्तमान में विश्व का जनसंख्या कितना है? 830 से लेकर 840 करोड़, मतलब 8.3 से लेकर 8.4 करोड़। विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है? विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है? 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में भारत का जनसंख्या कितना है? वर्तमान में भारत का जनसंख्या कितना है? 146 करोड़ से अधिक। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत का है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत का है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में है या भारत का है? तो 18%। भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है? भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है? तो 2.4%। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 480 से लेकर 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आंसर है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या कितना है? बिहार का जनसंख्या कितना है? उसका 13 करोड़ से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर है शिवहर, जिसका 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जिसमें 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या है? जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। विश्व का दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महादेश कौन सा है? आंसर है एशिया। दुनिया का सबसे कम आबादी वाला महादेश कौन सा है? आंसर है अंटार्कटिका। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर है बांग्लादेश। दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर है मंगोलिया। और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? आंसर एशिया। भारत में वर्तमान में कितने शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है? सौराष्ट्र किस भाषा का अंग है? सब देख के बोल रही है सर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया? मुंबई। कोलकाता। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 331। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या आवश्यक है? 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां। संविधान के किस अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति देती है? अनुच्छेद 249। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है? 12 सदस्यों को। मेरा राजनीति कहाँ है रे भाई? हमारे देश में कुल लोकसभा की संख्या कितनी है?
राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य कितना है? भारत में पहली बीज कब बोया गया था और कौन बोया था? 1857 मंगल पांडे। मोटो योजना कब आया? 1909 में। बर्लिन की दीवार कब गिरा दिया? 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की दीवार कब बन गया था? 1961 में। सर बर्लिन का दीवार है कहाँ? नहीं सर। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाया गया। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय शासक नेपोलियन से किया जाता है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया? श्रीलंका में। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका देश में भेजा गया। उसका मित्र था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बन गया? उपगुप्त। संघर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम। संघर्षण बलराम का दूसरा नाम था। पंच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? भागवत गीता में। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? 1999 में। जनाकिंकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। जनाकिंकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर है इसका नेस्टिन ने। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पश्चिम। सऊदी अरब में प्राचीन काल से पश्चिम दिशा में जनसंख्या घनत्व अधिक है। भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रत्येक प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। प्रत्येक प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? मुस्लिम लीग। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? विश्व की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ विश्व की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये भारत है। और देखिए विश्व में खड़ा बोलेगा ना माइक लो। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1952। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 1956 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। चीन में आणविक परीक्षण कब हुआ? 1964 में। पंचशिला समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत और चीन। भारत और चीन। EMS नंबूरी पाद किस पार्टी से थे? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? अप्रैल 1980। दूसरा आम चुनाव में लोकसभा में कुल कितने सीटें थी? 494। तीसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर। सोवियत संघ में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? भारत में।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। के.एन. राज। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? राष्ट्रकूट ने। जीवक वैद किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश। रथ मूसल नामक यंत्र का प्रयोग किसने किया था? अजात शत्रु ने। महाशिला कंडक नामक यंत्र का प्रयोग किसने किया था? अजात शत्रु ने। मगध की प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? पाकिस्तान में। गंधार राज्य में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। गीता का उपदेश किसने दिया? कृष्ण ने। गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष। वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वृष्ण। किस संत ने गीता को मराठी में लिखा? मानेश्वर। जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उल हक ने। सहकारी कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है? डेनमार्क में। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। धान किस प्रकार की खेती है? गहन निर्वहन कृषि से। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? मलेशिया। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर होती है? चाय की खेती। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटपुर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु कब हुआ था? 1548 में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसी साहब किस चीज को मानते थे? सूफी संत। जैसी जी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। जैसी जी किस चीज के कारण रूपहीन थे? चेचक के कारण। जैसी जी किस आंख से रूपहीन थे? बाएं आंख से और कान से। मलिक द्वारा रचित रचना की भाषा कौन सी थी? अवधी। करवक पद्मावत के किस छंद से लिया गया है? शुरुआती के अंतिम छंद से। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया रचना क्या है? बातचीत। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का पिता एवं माता का नाम क्या था? माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद। हिंदी पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हो गया सर।